Good morning, dear students. So let's start today's our class. Today's date is 23 of July and day is Thursday. Okay? And we studied in the last class poem Sea Song. Right now? And after that our next story is A Little Fish Story. A Little Fish Story is a part 2 of unit number 4. Okay, so let's start this story, and the title of this story is A Little Fish Story. A Little Fish Story मीन्स यह जो स्टोरी है वो किसकी है? वन लिटिल फिश की है. यह जो स्टोरी है वो किसकी है? वन लिटिल फिश की, मीन्स एक छोटी सी फिश की स्टोरी है. ओके, सो read carefully, all of you read and listen carefully. Okay, let's start. There are a great many millions fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Now this little fish had everything in the seas to make him content, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its howl was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled thought the mesh and slipped back into the cool, clean water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. Okay, and this story written by Enosh B. Comstock. Okay, Enosh B. Comstock ने जो है ये स्टोरी राइट की है. Okay, dear student, so let's start explanation of this story. Okay, so this story of related to be a little fish. मतलब जो ये स्टोरी है किसकी स्टोरी है? अ लिटिल फिश की, मतलब एक छोटी फिश की स्टोरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आर यू रेडी? There was a great many million fish in the seas. मीन्स जो सीज होते हैं. सी मीन्स समुद्र.
वेरी वेल, बिकॉज जो बिफोर वाला चैप्टर था उसमें भी हमने सी के बारे में स्टोरी रीड की थी। तो जो सी होता है वहाँ पर जो है मैनी मिलियंस फिशेस होती है। मिलियंस मीन्स लाखों, एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। ओके, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। तो जो सीज होते हैं, समुद्र होते हैं, उसमें मिलियंस फिशेस होती है। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। बट ये जो स्टोरी है उन मिलियंस फिश की नहीं है, उन मिलियंस फिश में से वन फिश की जो है ये स्टोरी है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। मतलब जो सीज होते हैं उसमें मिलियंस फिश होती है, लाखों फिश होती है, बट जो ये स्टोरी है, हम जो स्टोरी रीड कर रहे हैं, ये वो मिलियन फिश की स्टोरी नहीं है। उन मिलियन फिश में से वन स्मॉल फिश, एक जो छोटी फिश है, उस फिश की स्टोरी के बारे में हमें रीड करना है या हम रीड कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट, now this little fish had everything in the sea to make him content. Content. What is the meaning of content? What is the meaning of content? Content means होता है like this, जब हम कुछ और चाहते हैं और हमें वो कुछ नहीं मिलता तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। मीन्स इन हिंदी मीनिंग संतोष नहीं मिलता है, मीन्स हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंट बट ही वॉज नॉट हैप्पी। मीन्स वो जो फिश है, लिटिल फिश है, उसे सी में सब कुछ मिल रहा था। मीन्स उसे फ्रीडम मिल रही थी, उसे खाने के लिए जो है इंसेक्ट्स मिल रहे थे, मीन्स फूड मिल रहा था, बट जो है फिर भी वो हैप्पी नहीं थी। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट। ये जो पोएट, सॉरी, जो ऑथर है, ऑथर मीन्स लेखक, जिन्होंने ये स्टोरी राइट की है। जो स्टोरियाँ राइट करते हैं, स्टोरी मीन्स कहानियाँ राइट करते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑथर मीन्स लेखक। और जो पोएम रीड करते हैं उन्हें बोला जाता है पोएट मीन्स कवि। ओके, डू यू अंडरस्टूड? तो ये जो हम रीड कर रहे हैं ये क्या है, स्टोरी है कि पोएम है? स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी। ओके, तो इसे जो राइट किया है, किसने राइट किया है? हमने नीचे नेम रीड किया था उनका, ऑथर का, इनोश बी कमस्टॉक। इनोश बी कमस्टॉक जो ऑथर है, उन्होंने यह स्टोरी राइट की है। तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि जो है इस सी में मतलब मिलियंस फिश है, बट हम ये जो स्टोरी रीड कर रहे हैं ये उन मिलियंस फिश के बारे में नहीं है। उन मिलियंस फिश में से वन जो है लिटिल फिश है, एक छोटी सी फिश है, उस फिश के बारे में हम जो है ये स्टोरी रीड कर रहे हैं। और जो वो लिटिल फिश है उसे सी में एवरीथिंग, सब कुछ मिल रहा है, बट फिर भी वो जो है कंटेंट नहीं है, वो संतोष नहीं है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, बट वो जो है हैप्पी नहीं है। एंड यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट। और जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मैं आपको यदि बता दूं कि वह खुश क्यों नहीं थी, तो आप यह सुनकर जो क्या करने लगेंगे, लाफ करने लगेंगे। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट। मीन्स जो ऑथर है वो कहते हैं कि यदि मैं आपको बता दूं कि वह खुश क्यों नहीं है, वह हैप्पी क्यों नहीं है, तो यह सुनकर जो है आप लाफ करने लगेंगे, हंसने लगेंगे। He was unhappy because he was so very small. He was unhappy because he was so very small. Means वो कहते हैं कि he was unhappy. Opposite of happy, unhappy. मीन्स जो हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या है, अनहैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश और अनहैप्पी मीन्स ना खुश, राइट। तो जो है ही वॉज अनहैप्पी, वह जो है एवरी टाइम अनहैप्पी रहती थी, ना खुश रहती थी, बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। बिकॉज वो कैसी थी, बहुत ही
छोटी थी। ही वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटी थी और वो यही सोच सोच के जो है उसके पास सब कुछ होते हुए भी, मतलब सीज में उसे ऑल फैसिलिटीज़ होते हुए भी जो है वो अनहैप्पी रहती थी, बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, बिकॉज वो बहुत ही छोटी थी। एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ fish. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. Over and over again. Okay. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could. How much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. Okay, so it is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. मतलब जो है वो ऐसा काफ़ी टाइम जो है सोचती रहती थी, बहुत बार सोचती रहती थी अपने छोटे होने के ऊपर कि मैं जो है बहुत ही छोटी हूँ। यह जो है वो काफ़ी टाइम सोचती रहती थी कि आई वॉज वेरी स्मॉल, आई एम वेरी स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूँ। एवरी टाइम जो है वो यही थिंक करते रहती थी, है ना। एंड इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। और वो कहती है कि यदि मैं जो है लार्जर होती, बड़ी होती, बहुत बड़ी होती, तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुश होती। वो कहती है मतलब वो अपने छोटे होने के बारे में बहुत सोचते रहती है कि जो है मैं बहुत ही स्मॉल हूँ, बहुत ही छोटी हूँ, तो इसके बारे में वो बहुत सोचते रहती है। और फिर वो जो है सोचती है कि इफ़ आई वर ओनली लार्जर, कि यदि मैं जो है बहुत बड़ी होती, लार्जर होती, तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुश होती। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और जो है वो ऐसा काफ़ी टाइम, बहुत बार सोचती है कि यदि मैं बड़ी होती तो कितनी खुश होती। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, मैं बड़ी होती, मैं लार्जर होती, तो जो है मैं कितनी खुश होती। ऐसा जो है वो काफ़ी टाइम जो है थिंक करती रहती है, सोचते रहती है। ओके। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. Means one day he was swimming along with the rest of his school. Rest of his school means जो है, जो फिशेस का ग्रुप होता है उसे स्कूल कहा गया है। इसमें मीन्स जो फिशेस का ग्रुप जिसमें कि मैनी फिशेस हो, बहुत सारी फिशेस एक साथ में स्विमिंग कर रही हो, तो उसे कहा गया है फिश रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, मतलब जो है फिशेस के ग्रुप को स्कूल कहा गया है। तो वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, मतलब एक दिन जो है वो अपने सारे फिश ग्रुप के साथ स्विमिंग कर रही थी।
फिश ग्रुप के साथ, मतलब जो अपने जो स्कूल है फिशेस का उसके साथ स्विमिंग कर रही थी। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स तैर रही थी, है ना। स्विम मीन्स तैरना। तो वन डे जो है ये लिटिल फिश अपनी ऑल अदर जो फिशेस है उनके साथ क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी एंड थिंकिंग, और सोच रही थी। नो डाउट, नो डाउट, how much more the larger fish had to be thankful for than he। मीन्स जो लार्जर फिश है वो कितनी हैप्पी होती होगी, कितनी थैंकफुल होती होगी। when suddenly, जब ही क्या हुआ, suddenly, you know suddenly because suddenly word says, जो suddenly वर्ड है आपकी, आप जो भी चैप्टर रीड करते हैं उसमें काफ़ी टाइम आता है सडनली वर्ड। तो सडनली मीन्स होता है अचानक। तो व्हेन सडनली, तभी जो है सडनली अचानक, विथ नो वार्निंग मीन्स विदाउट वार्निंग, कोई भी वार्निंग नहीं मिली। एंड दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। मैसेज मीन्स होता है जाल। मैसेज मीन्स मछली, जो फिश पकड़ने का जाल होता है, जाली होती है, उसे बोला जाता है मैश। ओके, विथ नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्व इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट। उन्होंने देखा कि जो है, उन्होंने क्या पाया कि जो वे सारी की सारी कहाँ फंस चुकी है, मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट, जो जाल में, मछली का जो बड़ा सा जाल है उसमें वो सारी की सारी फंस चुकी है। Okay, there was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. There was much floundering. Floundering means होता है ऐसे, लाइक दिस। आपने अगर फिश देखी हो तो फिश ऐसे फड़फड़ाती है ना। तो जो फ्लॉन्डरिंग मीन्स होता है तड़फड़ाना। ओके, तो देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मीन्स जैसे ही आपने फिश को देखा है, तो जैसे फिश में जब वाटर में जब फिश ऐसे ऊपर नीचे होती है तो उसके साथ जो है ऐसे जो वाटर होता है वो ऊपर नीचे उछलता है ना, ऊपर की तरफ आता है। या सपोज दैट कभी हम जैसे वाटर पर ऐसे हाथ रखे या फिर कुछ फेंके तो जो वाटर है वो उछल कर ऊपर आता है ना, वह है स्प्लैशिंग। तो देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its howl was being emptied into the boat। Howl, what is the meaning of howl? Means हड़बड़ी मचाना। तो जो है जैसे ही ऑल फिशेस, मतलब ऊपर से क्या आया कि फिशेस का जाल आया, मछली को जो पकड़ने वाला जाल आया, और उसमें जो सारी की सारी फिशेस फंस गई और क्या करने लगी, फ्लॉन्डरिंग करने लगी। फ्लॉन्डरिंग करने लगी मीन्स ऐसे ऐसे तड़फड़ाने लगी, फड़फड़ाने लगी। एंड स्प्लैशिंग मीन्स पानी में इधर उधर होने लगी। तभी जो है क्या किया, जो फिश पकड़ने वाले थे उन्होंने जो मैशेस है, वो जो जाल है, उसे ऊपर की तरफ सनलाइट में खींच लिया। एंड जस्ट इट्स हाउल वॉज बीइंग, हाउल मीन्स हड़बड़ी मचाना, और जो है थोड़ी क्या मचने लगी वहाँ पर, हाउल होने लगा मीन्स हड़बड़ी मचने लगी। एंड एम्प्टीड इनटू द बोट, और जो है वो जो फिशमैन है, जो फिशर है, उसने सारी की सारी जो फिशेस है जिन्हें उसने जाल में फंसाया था उनको ऊपर सनलाइट में खींचा। एंड एम्प्टीड इनटू द बोट, और जो है बोट में खाली कर दिया। एम्प्टी मीन्स खाली है ना। तो एम्प्टीड इनटू द बोट, और जो है वो सारी फिशेस को बोट में खाली कर दिया। The smallest fish in the school wriggled. The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clean
water. बट जो स्मॉलेस्ट फिश है, बट जो स्मॉलेस्ट फिश है उसने क्या किया, अपनी जो टेल है उसे हिलाई और अपने जो फिन्स है उसे हिलाया. रिगल मीन्स जो फिश होती है, फिश की जो टेल होती है ना, जिसकी हेल्प से जब वो वाटर में स्विमिंग करती है तो डायरेक्शन चेंज करती है. यू नो वेरी वेल कि जो फिश है उसे जब वाटर में स्विमिंग करना होता है तो जब वो डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब जो ऑलवेज फिश है वन ही डायरेक्शन में स्विम करती है क्या? नो, वो डायरेक्शन एकदम सडनली, आपने देखा होगा कि सडनली वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है एकदम फास्टली, है ना, क्विकली चेंज कर लेती है. तो जो फिश है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए किसकी हेल्प लेती है? अपनी टेल की हेल्प लेती है ना. तो जो फिश है वो अपने फिन्स एंड टेल की हेल्प से स्विमिंग करती है, राइट. तो जो है रिगल मीन्स होता है जो फिश की टेल एंड जो फिन्स होते हैं उसे रिगल कहा जाता है. तो वो स्मॉलेस्ट फिश भी पहले तो जो है उसमें फंस चुकी थी उस नेट में, बट उसने क्या किया, फिश इन द स्कूल रिगल थ्रू द मेश एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लीन वाटर. अपनी जो है टेल एंड फिन्स को फड़फड़ाया और जो है हिलाते हुए वो कहाँ पर, मैश से, मछली के जाल से जो है फिर से वाटर में, कूल क्लियर वाटर में स्लिप कर गई, मीन्स गिर गई. एंड हाउ गुड इट फेल्ट, और वो कहती है हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लगा. बिकॉज जो फिश होती है विदाउट वाटर फिशेस लाइफ आर नॉट पॉसिबल, मीन्स बिना वाटर के जो है फिश की लाइफ पॉसिबल नहीं है. सपोज़ जब कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम फिश को आउट ऑफ वाटर के बाहर निकाले तो वो एकदम तड़फड़ाने लगती है, और जैसे ही उसे वाटर के अंदर डाल दे तो वो क्या करने लगती है, स्विम करने लगती है, राइट. इसके ऊपर आपने कविता भी सुनी होगी पहले जो बनी थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, राइट ना. तो ऐसे ही जो है जो स्मॉल फिश है उसने क्या किया, वो जो फिशेस का नेट था, फिश फंसाने का जो नेट था, जाल था, उसमें से स्लिप करके जो है वो वाटर के अंदर आ गई और फिर बोलती है कि वाटर के अंदर गिर गई और फिर बोलती है कि हाउ गुड इट फेल, मतलब कितना अच्छा लग रहा है. Okay dear students, that is all today, and this last paragraph is will be next class. Okay, कैसी लगी यहाँ तक की आपकी स्टोरी? गुड ना. Okay, the next is will be next class. Thank you.